Good morning, class 11. To form a private company, we need to pass through two stages, promotion and incorporation. But when we talk about forming a public company, but a private company cannot issue shares to the general public. Private company make the arrangement of finances privately by issuing its shares to the known ones, relatives, friends, etc. But a public company can raise the funds from the public by means of issue of shares and debentures. That is, if company wants to collect 10 lakh rupees for its capital, this 10 lakh can be divided into shares of rupees 100 each. Part of capital divided into small denomination is known as shares. Capital is divided into small denomination known as shares. So 10,000 shares of rupees 100 each. And company can raise funds from the public by means of issue of shares and debentures. Share is the part of capital, whereas debenture is the part of loan. For doing the same, how general public came to know that this particular company is issuing shares? So company needs to give an invitation to the public. एक advertisement देना पड़ेगा, invitation देना पड़ेगा. It has to issue a prospectus. What is prospectus? An invitation to the public to subscribe to the capital of the company. An invitation is given to the public to subscribe to the capital of the company and to subscribe to the capital of the company and undergo various other formalities. What are the formalities which are to be required for the issue of shares and debenture? That is for subscribing the capital. That is why this stage is known as capital subscription stage. First step is SEBI approval. What is SEBI? Securities Exchange Board of India. It is the regulatory authority in our country. This authority, Securities Exchange Board of India, regulates stock exchanges in our country. It gives security to the investor, right? It gives protection to the investors that no fraud company can take money from the general public. कोई भी फ्रॉड कंपनी जनरल पब्लिक से मनी रेज नहीं कर सकती. ये कौन देखेगा? ये सेबी देखेगी. ये रेगुलेट करती है स्टॉक एक्सचेंजेस को हमारी कंट्री में. इट हैज इशूड गाइडलाइंस फॉर द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इन्वेस्टर प्रोटेक्शन. इन्वेस्टर की प्रोटेक्शन का मेन रोल प्ले करती है बेटा सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. अ पब्लिक कंपनी इन्वाइटिंग फंड्स फ्रॉम द जनरल पब्लिक, जो वो पब्लिक कंपनी जो जनरल पब्लिक से फंड्स मंगा रही है, मस्ट मेक एडिक्वेट डिस्क्लोजर of all relevant information and must not conceal any material information from the potential investors. कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इन्वेस्टर से छुपानी नहीं है, सब कुछ डिस्क्लोज कर देना है. दिस इज नेसेसरी फॉर प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स, ताकि इन्वेस्टर्स के साथ कोई फ्रॉड ना हो. प्रायर अप्रूवल फ्रॉम सेबी इज देयरफॉर रिक्वायर्ड बिफोर गोइंग अहेड विद द रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक. अगर हमें सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया अप्रूवल ही नहीं देते हैं तो हम पब्लिक कंपनी रेज नहीं कर सकते, पब्लिक कंपनी मनी रेज नहीं कर सकती और एक पब्लिक कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती. बेटा दिस सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया फाइल्ड अ केस अगेंस्ट सहारा. ऑल ऑफ यू नो अबाउट सहारा. मिस्टर सुब्रतो रॉय, अ वेरी गुड फाइनेंस कंपनी वॉज देयर, बट टुडे नो वन इज इन्वेस्टिंग इन सहारा. और जिनके इन्वेस्टमेंट थे उन्होंने भी विड्रॉ कर लिए बेटा. क्यों? क्योंकि ये सेबी के अंडर रजिस्टर्ड नहीं थी, सेबी से अप्रूवल इन्होंने नहीं लिया था और जनरल पब्लिक से ये फाइनेंसेस लेते जा रहे थे. बेटा फाइनेंस जो लेते हैं जनरल पब्लिक से वो या तो बैंक्स होते हैं. बैंक्स शुड बी रजिस्टर्ड अंडर आरबीआई एंड पब्लिक कंपनीज दोज हु रेज फाइनेंस फ्रॉम जनरल पब्लिक, those should take approval from Securities Exchange Board of India, right? So first step, we need to get approval from Securities Exchange Board of India. Second step is filing of prospectus. A copy of prospectus, that is an invitation to the general public,
or statement in lieu of prospectus, in place of prospectus, is filed with the registrar of companies. It is any document described or issued as a prospectus, including any notice. It is referred to as any notice, circular, advertisement or other document inviting deposits from the public. पब्लिक से डिपॉजिट्स इनवाइट करते हैं कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, और इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम द पब्लिक फॉर द सब्सक्रिप्शन or purchase of any securities of a body corporate. In other words, it is an invitation to the public to apply for shares and debentures of the company or to make deposits in the company. Investors make up their minds about investment. Prospectus को पढ़ेंगे, कंपनी के बारे में स्टडी करेंगे, एंड देन दे मेकअप देयर माइंड अबाउट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी प्राइमरली ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड इन दिस डॉक्यूमेंट. देयरफॉर अब इन्वेस्टर इसी को पढ़ के अपना डिसीजन ले रहा है, तो इसमें कोई भी रॉन्ग स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए. देयरफॉर देयर मस्ट नॉट बी अ मिस स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस एंड ऑल मटीरियल significant information must be fully disclosed. Got the point? Second point is filing of prospectus. After prospectus has been filed, जो मनी है बेटा वो कैसे आएगा? बैंकर्स के थ्रू. क्यों? क्योंकि पब्लिक तो है ऑल ओवर कंट्री. हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी का एक प्लेस पर. मेरी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस नागपुर में है. मैं खाली नागपुर के पब्लिक से ही इनवाइट नहीं करूंगी, मैं ऑल ओवर कंट्री से इनवाइट करूंगी. राइट? तो जब मैं ऑल ओवर कंट्री से इनवाइट कर रही हूँ फंड्स, सारे नागपुर तो आएंगे नहीं बेटा डिपॉजिट कराने, तो आई नीड अपॉइंटमेंट ऑफ ब्रोकर्स, बैंकर्स एंड अंडरराइटर्स. व्हाट इज द जॉब ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स एंड अंडरराइटर्स? ब्रोकर्स यूज टू कन्विंस द इन्वेस्टर, दे यूज टू मोटिवेट द इन्वेस्टर कि आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करो. Underwriters also used to motivate the investor to invest. Then what is the difference between brokers and underwriters? Brokers only used to motivate, or if broker manage to issue rupees 1 lakh of a company, they will get brokerage on 1 lakh at the rate of 2%, 2.5%, 3% commission they will get, and the commission which is given to brokers is known as brokerage. वो कमीशन जो ब्रोकर को दी जाती है बेटा उसको ब्रोकरेज कहते हैं. ये कंपनी डिसाइड करती है कि 2% देना है, 2.5% देना है, 3% देना है, 5% देना है. ब्रोकर जितना अमाउंट रेज कराने में हेल्प करेगा उसको उतने पे कमीशन मिल जाएगी, उसको ब्रोकरेज कहते हैं. अंडर राइटर को जो कमीशन दी जाती है उसको कहते हैं अंडर राइटिंग कमीशन. राइट? बट इन केस अंडर राइटर्स ने अंडरराइट कर दिए शेयर्स कि हम आपके 5 लाख शेयर्स इशू कराएंगे ही कराएंगे, और अगर जनरल पब्लिक ने 4 लाख रुपीस के शेयर सब्सक्राइब किए तो रिमेनिंग 1 लाख इज टू बी टेकन बाय द अंडरराइटर्स. ब्रोकर्स की कोई लायबिलिटी नहीं होती, वो सिर्फ हेल्प करते हैं कंपनी को. अंडरराइटर्स की लायबिलिटी हो जाती है. अगर पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया तो अंडरराइटर्स को वो शेयर लेने पड़ेंगे. तो कंपनी को श्योरिटी हो जाती है कि जनरल पब्लिक नहीं लेगी तो अंडरराइटर्स लेंगे ही लेंगे और हमारे पास फाइनेंस आ जाएगा. अंडरराइटर्स श्योर होते हैं कि पब्लिक ले लेगी, अंडरराइटर्स पब्लिक को कन्विंस करते हैं. इन केस पब्लिक ने कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया तो ये अंडरराइटर्स उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं. तो अंडरराइटर बिकम द शेयर होल्डर इफ पब्लिक डू नॉट इन्वेस्ट इन द कंपनी. रेजिंग फंड्स फ्रॉम पब्लिक इज अ स्टुपेंडियस, वेरी डिफिकल्ट टास्क. The application money is to be received by the bankers of the company. जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे उसके साथ जो मनी देंगे दैट इज नोन एज एप्लीकेशन मनी. कौन रिसीव करेगा? बैंकर्स रिसीव करेंगे. द ब्रोकर्स ट्राई टू सेल द शेयर्स बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग फॉर्म्स एंड एनकरेजिंग द पब्लिक टू अप्लाई फॉर द शेयर्स. इफ द कंपनी इज नॉट, if the company, brokers will try to sell the shares, and if the company is not reasonably assured of a good response to the issue, it may appoint underwriters. अगर कंपनी को ज़रा सा भी डाउट है बेटा कि ब्रोकर्स के थ्रू सेल नहीं होगा तो वो अंडरराइटर्स अपॉइंट करते हैं. अंडरराइटर्स अंडरटेक टू बाय द शेयर्स. ब्रोकर सिर्फ हेल्प करते हैं, अंडरराइटर्स की लाइबिलिटी बन जाती है. दे अंडरटेक to buy the shares if these are not subscribed by the public.
they receive a commission for underwriting the issue. Appointment of underwriter is not necessary, that depends upon the company. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, अब कंपनी ने कह दिया कि ₹2 लाख, दैट इज 2000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच इशू किए, राइट. अंडरराइटर्स भी अपॉइंट कर लिए. अगर कंपनी के पास 2 लाख की जगह 1,50,000 रुपीज आते हैं, पब्लिक इन्वेस्ट करती है, तो ये कंपनी स्टार्ट नहीं हो सकती. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि इतना पैसा तो आए कि कंपनी के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट हो और कंपनी अपने आप को स्टार्ट कर सके. इन ऑर्डर टू प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम कमेंसिंग बिजनेस विद इनएडिक्वेट रिसोर्सेज, it has been provided that the company receives application for a minimum number of shares before going ahead with allotment of shares. इतना मिनिमम अमाउंट आ जाना चाहिए कि उसको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना हो. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट दिस इज कॉल्ड मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट दिस इज कॉल्ड एज मिनिमम सब्सक्रिप्शन, एंड एज पर सेबी गाइडलाइंस the limit of minimum subscription is 90% of the size of issue. This is the most important 1 mark question also. What is the minimum size of minimum subscription? Limit of minimum subscription is 90% of size of the issue. For example, if a company issue ₹2 lakh shares, इसका 90% 1,80,000 की एप्लीकेशंस आ जानी चाहिए. 1,80,000 अमाउंट आ जाना चाहिए हमारे पास. अगर मैंने 2 लाख शेयर्स इशू किए हैं ऑफ ₹100 ईच, 2 करोड़ के, तो 2 लाख का 90% 1,80,000 की एप्लीकेशंस पब्लिक कंपनी के पास आ जानी चाहिए. इफ एप्लीकेशन रिसीव्ड फॉर द शेयर्स आर फॉर एन अमाउंट लेस देन 90%, अगर 90% से कम आया है, द अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड. हम शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते, नहीं दे सकते. अलॉटमेंट मीन्स शेयर्स देना शेयर होल्डर को. शेयर होल्डर, जनरल पब्लिक फाइनेंस देगी कंपनी को, कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करेगी जनरल पब्लिक को. जिसको शेयर सर्टिफिकेट इशू करेंगे वो शेयर होल्डर हो जाएगा. इसको कहते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. शेयर्स अलॉट कर देना. क्या अलॉटमेंट कैन नॉट बी मेड. और जो एप्लीकेशन मनी दी है जनरल पब्लिक ने, दैट मनी मस्ट बी रिटर्न टू दी एप्लीकेंट. वो मनी हम रिटर्न कर देंगे एप्लीकेंट को. दिस इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन. अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गया. अब हम एप्लीकेशन लगाएंगे स्टॉक एक्सचेंज में. स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट वेयर सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटीज टेक प्लेस. स्टॉक एक्सचेंज इज द मार्केट ऑफ शेयर्स. मार्केट मीन्स वेयर शेयर्स कैन बी सोल्ड एंड परचेज्ड. यहाँ एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी एटलीस्ट वन स्टॉक एक्सचेंज में फॉर परमिशन टू डील इन इट शेयर्स एंड डिवेंचर्स, कि हमारे शेयर्स और डिवेंचर्स को परमिशन दे दो, आपके स्टॉक एक्सचेंज में वो ट्रेड करना चाहते हैं. हमारी कंपनी आपके स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू शेयर्स और डिवेंचर सेल परचेज करेगी. इफ सच परमिशन इज नॉट ग्रांटेड बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 10 वीक्स फ्रॉम द डेट ऑफ क्लोजर ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, द अलॉटमेंट शैल बिकम वॉइड. खत्म हो जाएगा, हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते. और जितना मनी हमें रिसीव हुआ एप्लीकेंट से विल हैव टू बी रिटर्न टू देम विद इन 8 days. कितने दिन में रिटर्न करना है? 8 days में. आफ्टर एप्लीकेशन टू द स्टॉक एक्सचेंज, और अगर हमें परमिशन मिल जाती है स्टॉक एक्सचेंज से, देन वी नीड टू डू अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. हम शेयर्स अलॉट कर देंगे. टिल द टाइम शेयर्स आर अलॉटेड, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड शुड रिमेन इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट एंड मस्ट नॉट बी यूज बाय द कंपनी. जब तक शेयर्स अलॉट नहीं हो जाते तब तक वो कंपनी उस मनी को यूज नहीं करेगी. जब शेयर्स अलॉट हो जाएंगे तब एप्लीकेशन मनी यूज होगा. क्यों? इन केस कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई और शेयर्स अलॉट नहीं हो पाए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं मिला, स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन फाइनलाइज नहीं हुई, परमिशन नहीं मिली, तो वो एप्लीकेशन मनी हमको एप्लीकेंट को रिटर्न करना पड़ेगा, राइट. तो इट मस्ट नॉट बी यूज बाय द कंपनी इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज लेस देन द नंबर अप्लाइड फॉर. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये. इन केस द नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड इज लेस देन द नंबर अप्लाइड फॉर, यानी कि हमने एप्लीकेशन तो दी ज़्यादा, शेयर्स अलॉट हुए कम. तो जहाँ शेयर्स अलॉट नहीं हुए, वेयर नो शेयर्स आर अलॉटेड टू द एप्लीकेंट, द एक्सेस एप्लीकेशन मनी इज टू बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट. या तो उसको रिटर्न कर देंगे, या तो वो एक्सेस एप्लीकेशन अमाउंट रिटर्न कर देंगे,
और एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी ड्यू फ्रॉम दी। अब मुझे इस पॉइंट को आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, क्या मीनिंग हुआ अभी एक्सप्लेन करती हूँ। अलॉटमेंट लेटर्स आर इशूड टू द सक्सेसफुल अलॉटीज, जिनको शेयर्स देने हैं उनको दे देंगे, सक्सेसफुल अलॉटीज को अलॉटमेंट लेटर्स दे देंगे। रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट साइन बाय अ डायरेक्टर और अ सेक्रेटरी इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विद इन 30 days ऑफ अलॉटमेंट। 30 days के अंदर अंदर रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट साइन करके उनको प्रोवाइड कर देंगे। अ पब्लिक कंपनी मे नॉट इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब इट सिक्योरिटीज, इंस्टेड इट कैन रेज फंड्स थ्रू फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और पब्लिक और सम प्राइवेट अरेंजमेंट एज डन बाय अ प्राइवेट कंपनी। और अगर कोई पब्लिक कंपनी फंड्स रेज नहीं कर रही है, इन सच अ केस देयर इज नो नीड टू इशू अ प्रोस्पेक्टस। अ स्टेटमेंट इन प्लेस ऑफ प्रोस्पेक्टस इज फाइल्ड विद द रजिस्ट्रार एट लीस्ट 3 days बिफोर मेकिंग द अलॉटमेंट। राइट, अब आपका पॉइंट बचा इस लाइन का मीनिंग कि मैम इस लाइन का मीनिंग क्या हुआ, दैट व्हेन शेयर्स आर नॉट अलॉटेड द एक्सेस एप्लीकेशन मनी ईदर टू बी रिटर्न टू द एप्लीकेंट, ये तो आ गया वापस कर देंगे, और एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट? बेटा जी मैंने रिलायंस में 200 की एप्लीकेशंस दी, 200 शेयर्स की, एक शेयर 400 रुपीज़ का था, मैंने कितना अमाउंट दिया? 80,000 रुपीज़ दे दिया। मैंने कितना अमाउंट दे दिया? 80,000 रुपीज़ दे दिया कंपनी को। कंपनी ने मुझे शेयर्स दिए 100, कंपनी ने मेरा कितना अमाउंट यूज़ किया? 40,000। तो 40,000 कंपनी मेरे को रिटर्न करेगी। और अगर कंपनी ने मुझे शेयर्स दिए 150, तो कंपनी ने मेरा कितना अमाउंट यूज़ किया? 60,000। तो कंपनी मुझे कितने रिटर्न करेगी? 20,000। ये तो हो गया रिटर्न का मीनिंग। नाउ इफ़ 400 का शेयर है और 100 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी है बेटा, मैंने 150 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, मैंने 15,000 मनी दे दिया कंपनी को। कंपनी के पास शेयर्स नहीं है, कंपनी ने मुझे 150 की जगह 100 शेयर्स दिए, तो कंपनी ने मेरा अमाउंट 10,000 यूज़ किया। ये जो 5,000 है कंपनी मुझे रिटर्न नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कंपनी ने अभी मुझसे 100 रुपीज़ लिए हैं, लेने हैं 300 और। तो ये जो 300 लेना है बेटा, इसमें एडजस्ट कर देगी 5,000। मतलब नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट जब मैं पे करूँगी तो मुझे 5,000 कम पे करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द फर्स्ट क्वार्टर यू पेड ₹15,000 फीस, राइट। फर्स्ट क्वार्टर की फीस रिड्यूस होके 12,000 हो गई। आपने सेकेंड क्वार्टर की फीस 12,000 देनी है। अब आप 12,000 नहीं दोगे बेटा, अब आप 9,000 दोगे। आपका ये जो 3,000 एक्सेस है ये नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो एक्सेस मनी कैन बी एडजस्टेड टुवर्ड्स अलॉटमेंट मनी। नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में जो अलॉटमेंट के साथ मनी मांगते हैं उसको अलॉटमेंट मनी कहते हैं, जो हमें अपने शेयर होल्डर से लेना है, ड्यू फ्रॉम देम। सो इन दिस वे today you can complete your capital subscription stage, and today this chapter ends formation of company. First stage is promotion, then incorporation, and then capital subscription stage. Thank you so much. Please revise it.